بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سرکل۔ تو گائز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میری ویڈیوز پہ ویوز اچھے خاصے آ رہے ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب کوئی بھی نہیں کر رہا، تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کے بھی کاموں میں آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ اور اگر آپ کسی اور مذہب سے ہیں تو بھی آپ لوگوں کے کام میں آسانیاں پیدا ہوں، تو اس لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور زیادہ سے زیادہ ریڈ کیجیے میرے ناولز کو۔ میں بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں، تو پلیز میرے حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے کریں۔ وہ گنگناتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس عورت کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، وہ لبوں پر بڑی مغرور سی مسکراہٹ۔ اب تک اس نے جو چاہا تھا وہ سب اس نے حاصل کیا تھا، تو غرور کیسا نہ ہوتا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر اس نے شاہنواز خان کا نمبر ملایا تھا۔ پہنچ گئی اسلان میر کی ایکس وائف اپنے ٹھکانے پر؟ ادھر سے کال پک اپ کرتے ہی شاہنواز خان نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں پہنچ گئی، اور اسی شان سے پہنچ گئی جس شان سے ہم نے چاہا تھا۔ یہ سلان میر تو میری سوچ سے بھی زیادہ غیرت مند کہہ لو یا بیوقوف کہہ لو، دونوں ہی نکلا ہے۔ عورت بیڈ پر آرام سے لیٹی ہوئی مکروا ہنس رہی تھی۔ زیادہ غیرت مند بننے والے مردوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ہاتھوں سے یوں ہی بیوقوف بنتے رہتے ہیں۔ بجائے اسے گھر میں رکھنے اسے مار ڈالنا چاہیے تھا، مگر دیکھو کیسے پھر سے اپنے گھر ہی لے گیا۔ شاہنواز خان حقارت سے بولتے ہوئے اسلان میر کے بیوقوف بن جانے پر کہکے بھی لگا رہا تھا۔ وہ کیا مارے گا؟ تم نے کوئی کسر چھوڑی کیا مارنے میں؟ اتنی بری طرح سے کیوں مروایا اور اس کے ساتھ کیا کروایا تم نے؟ عورت کو شاہنواز خان کی کمینگی پر بہت غصہ آیا، اس لیے اپنے غصے کو ظاہر بھی کر دیا۔ کون سا فرق پڑ گیا، خود بڑی پیاسی تھی، میں نے سوچا اس کے ساتھ ساتھ اپنے آدمیوں کا بھی بھلا کر دوں۔ شاہنواز خان نے لاپرواہی سے کہہ کر جتا دیا تھا کہ ان کے غصے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تمہارے آدمیوں کی بھوک کسی بھی 2 ٹکے کی عورت سے مٹ جاتی۔ وہ کوئی گری پڑی تو نہیں تھی۔ عورت کو اور بھی غصہ آیا، وہ جیسے فون پر ہی ان پر گڑائی۔ تجھے کیوں اتنے مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ شاہنواز خان نے جیسے اسے اور بھڑکایا۔ شاہنواز خان مت بھولو، اس سے میرا کیا رشتہ ہے، اس نے بس دانت پیسے۔ معلوم ہے میں اب تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتا، یہ بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ بھی اسی عورت کے انداز میں بول کر بے چینی سے عروشہ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ تمہاری بیٹی اپنے غیرت مند شوہر کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں آرام کر رہی ہے۔ اب اس عورت کو موقع ملا تھا شاہنواز خان کو جلانے کا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ہلاتے ہوئے اس نے انہیں تپایا۔ ادھر وہ سچ میں تپ گئے۔ ایک لمحے کو موبائل پر خاموشی چھا گئی۔ کیوں، کیا ہوا شاہنواز؟ بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے تھے تم؟ وہ آرام کر رہی ہے اپنے بیڈ روم میں اپنے شوہر اسلان میر کے ساتھ، ہو سکتا ہے ان دونوں کے بیچ۔ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو۔ عورت بڑے گھٹیا انداز میں آگے بولتی کہ شاہنواز خان نے غصے سے چیخ کر کال کاٹ دی۔ میں جانتی ہوں شاہنواز خان تیری کمزوری کیا ہے، اور تیری بیٹی کی کمزوری کون ہے؟ بس صحیح وقت کا انتظار ہے، پھر تجھے اور تیری بیٹی کو کیسے اپنی گرفت میں کرنا ہے بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ عورت مکاری سے مسکرا کر سوچتے ہوئے اپنے سر کو جھٹک کر موبائل ایک طرف رکھتی تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ بادل بڑی زور سے گرجے تو اسلان نے چونک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کئی دنوں سے بارش اسی طرح آتے اور بادل اسی طرح آتے اور بنا برسے گرج چمک کر چلے جاتے۔ اب بھی جانے کب آسمان نے کالے کالے بادلوں کی چادر اوڑھ لی تھی اور اب شاید برسنے کے لیے تیار تھے۔ اسلان نے مسکرا کر اپنے سینے سے لگی عروشہ کے سر کو دیکھا، جانے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایسے ہی اسے سینے سے جکڑے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید سو گئی تھی، کیونکہ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی بنیان کو بھی مٹھی میں جکڑے وہ اس سے لپٹی ہوئی تھی، اور اس کی سانسوں کی آواز اسلان ساتھ ساتھ سن رہا تھا۔ اسلان نے ذرا سا گردن ٹیڑھی کر کے جھک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تھا۔ اسی وقت عروشہ نے آنکھیں کھول کر خود کو
دیکھتے اسلان کو دیکھا تھا، میں سمجھا تم سو گئی ہو۔ اسلان کو سچ میں تعجب ہوا، اس کے جاگے رہنے پر اتنی دیر سے اسے ایسے ہی لیے بیٹھا رہا تھا کہ شاید وہ سو رہی ہے۔ عروشہ نفیر میں سر ہلا کر اس کے سینے سے الگ ہونے لگی کہ اس نے پھر سے اسے سینے سے لگا لیا۔ سونے کا پوچھا تھا، الگ ہونے کے لیے تو نہیں کہا، چپ چاپ جیسے ابھی تک پڑی تھی ویسے ہی پڑی رہو۔ اسے زبردستی اپنے بازوؤں میں دوبارہ بھینچ کر وہ اب مسرور سا تھا۔ اسلان بہت دیر ہو گئی ہے، اب چلیں، نیچے چلتے ہیں، سب کیا سوچیں گے؟ عروشہ نے اسے احساس دلانا چاہا کہ کافی رات ہو گئی ہے اور نیچے سب ان کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، اب سب بھول کر وہی عروشہ تھی، لڑتی جھگڑتی معصوم حرکت کرنے والی۔ کچھ نہیں سوچے گا۔ میں کہہ کر آیا تھا ہمیں ڈسٹرب نہ کرے تو تم مطمئن رہو، اب کوئی ہمیں چھیڑنے بیڈ روم تک نہیں آئے گا۔ اس کے سر کو زبردستی اپنے سینے پر رکھتے ہوئے وہ سرشاری سے بولا۔ رات کی تنہائی، اس کا محبوب اس کے پاس، اسلان کو سب بے حد اچھا لگ رہا تھا، دل یہی کہہ رہا تھا وہ ایسے ہی اسے اپنی آغوش میں بھرے بیٹھا رہے۔ ہم بیڈ روم میں کہاں ہیں؟ ہم تو ٹیرس پر ہیں۔ وہ حیران سی چہرہ اونچا کر کے اسلان کو دیکھ کر بولی۔ ہم یہاں ہے، یہ صرف ہمیں معلوم ہے، باقی سب کے لیے ہم بیڈ روم میں ہیں، ایسا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، اسلان نے بتا کر خود کو دیکھتی عروشہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ عروشہ کو سب یاد آ گیا، کیسے وہ آنیہ کو دیکھ کر پاگل سی ہو گئی، یہاں آ کر چھپ گئی تھی، کیسے اسلان آیا اور اس کی باتیں جس نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسلان نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بغور دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، مجھ سے بات بھی مت کریں، اس لیے اتنے دن سے مصروف تھے، مجھے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی، اور آپ میری اجازت کے بغیر آپ میرے گھر میں لے آئے۔ اسلان کی ساری بات چھپا کر رکھنے پر اب وہ ناراض تھی۔ اتنے دن سے وہ اس عورت کی وجہ سے مصروف تھا اور اسے بنا اطلاع دیے وہ اسے اس کے گھر تک لے آیا تھا۔ عروشہ کی اب خالص بیوی والی حس بیدار ہو چکی تھی۔ اور وہ جاریہ سے اسلان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دے کر تیزی سے اس سے الگ ہو کر اٹھ چکی تھی۔ اسلان نے منہ بنا کر ناراض بیوی کو جاتے دیکھا تھا۔ خود سے بے پناہ محبت کرنے والی، اس پر پورا یقین رکھنے والی لڑکی کو تو وہ اپنی محبت کے احساس سے اسے حفاظت دے کر منا سکتا تھا، آرام سے قریب کر سکتا تھا، مگر اس نے ایک بیوی کو بے خبر رکھا تھا جس کی سزا وہ اسے خود سے دور کر کے دے کر جا رہی تھی۔ بیویوں والے انداز والی ناراضگی میں آ چکی عروشہ کو کیسے منائے؟ اسلان نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خالصانہ بیوی والے موڈ میں آ چکی اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا، پھر اسلان تعصب سے سر ہلاتے ہوئے پینٹ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہولے ہولے چلتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف جانے والے ڈور کھولنے کی کوشش کرتے عروشہ کے سر پر پہنچ گیا۔ موبائل پر زبردست رنگ بجنا شروع ہو گئی تو سنگل بیڈ پر سوئے ہوئے وجود نے کمفرٹر سے اپنا سر باہر نکالا۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے کھڑی دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ اس وقت کس وقت کو اس کی یاد آ گئی تھی؟ اس وقت کس کی کال ہے؟ نیند اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ کال کرنے والے پر شدید غصہ آیا تھا۔ لیٹے لیٹے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھانا چاہا، مگر ہاتھ مار مار کر ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی موبائل ہاتھ نہیں لگا اور وہ بج بج کر خاموش بھی ہو گیا۔ اس نے چین کی سانس لے کر دوبارہ کمفرٹر اپنے سر پر تان لیا۔ بس 2-4 ہی سیکنڈ موبائل پھر سے انچھگاڑتے ہوئے اسے جھنجھلانے پر مجبور کر چکا تھا، اور اس بار کمفرٹر پھینک کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سائیڈ لیمپ جلا کر سائیڈ لیمپ کے کونے میں اٹکا موبائل اٹھا کر اسے خاموشی کرنے لگا تھا کہ اسکرین پر اسلان بھائی کالنگ دیکھ کر اس کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ ہیلو اسلان بھائی، کیا بات ہے آپ اس وقت؟ وہ بے چینی سے موبائل کان سے لگا کر گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ تم دونوں بھائی بہنوں کو سارے گدھے بھیج کر سونے کی عادت ہے کیا؟ ادھر سے اتنا جلا بھنا جواب سن کر حشم نے موبائل کان سے ہٹا کر سامنے کر کے دیکھا، یہ اسلان میت ہے یا کوئی اور؟ چھوٹتے ہی ایسا سوال۔ پھر سے سو گئے کیا؟ ادھر سے کوئی جواب نہ پا کر پھر سے چنچلا کر پوچھا گیا۔ نہیں تو اسلان بھائی بات کیا ہے؟ آشو تو ٹھیک ہے نا؟ حشم کنفیوز سا تھا اور گھبرایا بھی۔ آخر کیا بات ہے کہ اسلان بھائی اتنی رات میں ایسے جلے بھنے سے موڈ میں ہیں؟
کہیں اس کی پیاری بہن نے کوئی بیوقوفی تو نہیں کر دی۔ تمہاری عاشق کی خیریت سے تو خود پوچھ لینا، مجھے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ ادھر سے بڑی سنجیدگی سے اس کا بات کا جواب دیا گیا تو حشم نے گہری سانس بھری۔ دیوار دیو اور پری کا خود کا مسئلہ ہے تو مجھے کیوں جگایا؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ جماہی لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ لالا کہا کرو تم بھی۔ اف، حشم کو پکا یقین ہو گیا اسلان میر ضرور کچھ کھسک گئے ہیں۔ بچائے بات بتانے کے پہلے ویسا مذاق اب نیا حکم؟ اسلان بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ مجھے کیا ہونا ہے اور تمہیں ایک بار کی بات سمجھ نہیں ہے؟ میں آتی۔ لالا کہا کرو مجھے ہانیہ کی طرح۔ حشم کا دل کہا موبائل اٹھا کر اپنے سر پر دے مارے۔ ان پر تو مار نہیں سکتا تھا، ایک تو اس کی نیند میں خلل ڈالا، اس پر سے ایسا آرڈر۔ یہ لالا کہلوانے کا شوق صبح میں اپنی رومانٹک بیوی کو دوں گا۔ مگر اس نے ایک بیوی کو بے خبر رکھا تھا جس کی سزا وہ اسے خود سے دور کر کے دے کر جا رہی تھی۔ بیویوں کے سے انداز والی ناراضگی آ چکی تھی۔ اسلان نے بھالوں میں ہاتھ پھیر کر خاصا سیڑھیوں کی طرف جانے والے تمہاری عاشق کی خیریت خود پوچھ لینا، مجھے بھیڑوں کے چھتوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ دھیرے سے ادھر سے بڑی سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا گیا تو حشم نے گہری سانس بھری۔ دیو اور پری کا خود کا مسئلہ ہے تو مجھے کیوں جگایا؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ لالا کہا کرو تم بھی۔ تمہیں بھی اپنی بہن کی طرح خود سے گفتگو کرنے کی عادت ہے؟ سامنے والا کچھ بھی بولے یا کچھ کہے، تم دونوں بھائی بہن دل ہی دل میں سوال جواب کرنے لگتے ہیں۔ ادھر سے تپا جلا اتنا اچھا جواب سن کر حشم کا سیانہ ہو گیا۔ آپ بولیں کیا بات ہے؟ آپ نے اتنی رات میں کیوں کال کی؟ اس بار بڑے تحمل سے حشم نے بڑے ادب سے بہنوئی صاحب سے پوچھا تھا۔ اتنی رات تو نہیں ہوئی کہ تم گھبرا ہی گئے؟ ہم نے تو کسی جوان لڑکے کو اتنی جلدی سوتے نہیں دیکھا۔ وہ آج شاید حشم کو بری طرح سے زج کرنے کے موڈ میں تھا۔ لالا آپ صبح بات کر لیجیے گا مجھ سے، وہ دانت پر دانت جما کر بڑی خفکی سے بولا تو ادھر سے اسلان نے کہکا لگایا تھا۔ ان کے کہکے پر حشم نے بس دانت ہی کچکچائے۔ عروشہ صحیح کہتی ہے، خون چلانے میں اسلان میر کا جواب نہیں۔ اب آئے نا تم لائن پر؟ سب خیریت ہے، بس تم سے ایک کام ہے۔ وہ ہنستے ہوئے نارمل ہوئے تو حشم نے شکر کیا تھا۔ آپ حکم کریں، اس نے ادب سے کہا۔ ایسا کرو تیار ہو جاؤ، فیضان تمہیں لینے پہنچتا ہوگا، اس کے ساتھ یہاں آ جانا۔ ہاں البتہ وہ
वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और रास्ते में जो भी तुम्हारी बहन को खाने में पसंद है वो भी पैक करवा लेना। और सुनो, अंदर आकर शोर मत मचाना, बस सीधे टेरेस की तरफ आना, मैं वहीं हूँ। ठीक है, जल्दी करो, मैं मुंतज़िर हूँ। वो अजलत में उसे सब समझाता हुआ फ़ोन काट चुका था। हशम बेवकूफ़ों की तरह सब सुनता और अब मोबाइल को घूर रहा था। ये असलान भाई को हुआ क्या है आखिर? इस तरह रात में कौन किसी को बुलाता है? और ये अरुषा को खाने पीने का फिर से कोई दौरा पड़ गया है? नींद को खैर बात कहकर वो सर झटक कर पैरों पर से कंफर्टर फेंक कर उठ चुका था। उसके हुक्म के मुताबिक वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में उनका वफादार फैजान आने वाला था, जो असलान भाई से भी ज़्यादा खतरनाक लगता था उसे। असलान मोबाइल दोबारा जीन्स के पॉकेट में रखकर होले से हंस दिया। अपनी बातों से उसने हशम को जो तंग किया था, हशम की हालत का सोच सोच कर ही उसे हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए इस तरफ चला आया जिधर पूरी बीवियों वाले खूंखार मूड में वो छत पर रखी उस अकलौती चेयर पर कब्जा करके बैठी हुई थी। असलान ने अब तक उसे बनाने की कोशिश ही नहीं की थी, क्योंकि वह दोनों दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे। टेरेस पर आते वक्त उसने एहतियात के तौर पर ऊपर आने वाला अकलौता डोर लॉक कर दिया था, और उधर से शायद मुलाजमा ने अपनी रोज़ाना वाली ड्यूटी अंजाम देने के लिए जाते हुए डोर लॉक कर दिया था, इसलिए ना डोर खुलना था, ना आरुषा को नीचे जाना था। तब से अब तक आरुषा ने उसे ढेरों सलावा सुना दी थी। वो भी आराम से सुनता हुआ इधर से उधर टेरेस पर टहलता नीचे जाने के लिए तदबीरें सोच रहा था। ऐसी तरकीब की जाए कि वो दोनों नीचे पहुंच जाएं और किसी को पता भी नहीं चले। ये काम फैजान बखूबी अंजाम दे सकता था, मगर फ़िलहाल उसका घर में आना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। गार्ड से कहना नहीं चाहता था। फिर उसे हशम का ख्याल आया था। कुछ उसे सताने का भी मूड बन गया था, इसलिए उसे कॉल करके वो अब मुतमईन था। ऐसे घूम रहे हैं आप जैसे पार्क में वॉक पर निकले हों। कब से देख रही हूँ असलान को मस्त मुगन सा टहलते हुए, मगर अब खामोश रहना बस में नहीं था। अकेले सिलक सिलक कर वो आदी हो गई थी, और बादशाह सलामत आराम से घंटे भर मोबाइल से चिपक कर अब टहलने का शुगल फरमा रहे थे। तुम भी अपने पैर को जहमत दे लो, मगर चेयर छिन जाने का डर होगा। वो इत्मीनान से उसका खून चलाकर अपनी जीन्स की पॉकेट में दोनों हाथ डालकर इधर से उधर आहिस्ता कदमों से चहलकदमी कर रहा था। अल्लाह ऐसा मियाँ किसी को ना दे। वो बुरी तरह से जल कर बड़बड़ाई। कैसे दे सकता है, एक ही पीस था, वो भी तुम दुआएं मांग मांग कर अपने नाम कर चुकी हो। असलान जब मोहब्बत के मूड से निकलकर खून चलाने वाले मूड में आ जाता था तो कैसे दूसरों का सरापा सिलका देता था। ये कोई अरुषा से पूछे। आपको अपने नाम नहीं किया था, आप खुद जबरदस्ती मुझे अपने नाम बनाने के लिए मरे जा रहे थे। भूल गए कैसे गन पॉइंट पर मेरे भाई को लाकर निकाह के लिए हाँ करवाई थी। उसने चेयर पर भी फैल कर बैठते हुए बहुत जल कर दो बदू जवाब दिया। अरुषा के जले भुने से तंज पर असलान ने वहीं ठहर कर आंखें सुकड़कर उसे घूरना शुरू किया था। अल्लाह, कहीं गलत टाइम पर कमबख्त ज़बान तो नहीं फिसल गई इसे इस तरह अपने घूरते देखकर। आरुषा ने गड़बड़ा कर दिल में सोचा। चेयर और सिर्फ बनियान में उसके मसल्स पूरी तरह से जाहिर हो रहे थे। ये बुरा मान गए तो बच भी नहीं सकती मैं। लानत है तुझ पर अरुषा, कितना बोलती हो तुम। इस बार उसने थूक निकलते हुए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। बचने की कोई तो राह होगी। अब घूरते रहेंगे या नीचे जाने का भी सोचेंगे। वो इसी पोजीशन में खड़ा रहा तो वो आहिस्ता से उससे निगाहें चुरा कर बोली। दिल सहम सा रहा था। जानती थी इस्लान कितना हसास है। इस हादसे के मामले में फिर भी जबान चल पड़ती थी। क्यों, बैठी रहो और कुछ बोलो, मैं कुछ और भी सुनना चाहता हूँ। ज़रा सा जो उसका अंदाज तब्दील हुआ हो, उसकी काली आंखों की तरफ से देखने से परहेज करते हुए अरुषा अब खुद को कोस रही थी। क्यों वो इतनी बेवकूफ़ है। बोल रही हूँ ना, डरती नहीं हूँ आपसे। एक तो उस डाइन को मेरे सर पर सवार कर दिया, ऊपर से मुझे डरा रहे हैं। ज़बान फिसल गई तो क्या करूँ। जैसे तैसे अपने दिल को तसल्ली देकर उसने जुर्रत पैदा करके भी उसे भी घूरने का शुगल शुरू किया। असलान को दो ही कदम लगा था उसके सर पर पहुंचने पर। अरुषा गड़बड़ा गई। आज तो गई वो काम से। असलान ने एक ही झटके में उसकी कलाई पकड़कर उसे चेयर से उठा कर खड़ा कर दिया और खुद चेयर संभाल कर बादशाहों की तरह अकड़ कर बैठ चुका था। अरुषा जो उसके खंजर पर घबराई थी और किसी और चीज़ की मुंतज़िर थी, उसकी धांधली पर उसकी आंखें खुल गई। अब तुम घूम फिर कर जो चाहे मुझे कह सकती हो, मैं आराम से सुन लूंगा। वो आराम से अपनी लंबी लंबी टांगे फर्श पर फैलाकर चेयर की पुश्त से पे सर टेक कर आंखें मूंद गया। और प्लीज़ जो बोलना है वो बोलती रहना, मगर अपना लाउड स्पीकर ज़रा कम रखना, मुझे नींद आ रही है। ज़रा की ज़रा आंखें खोल कर कहते हुए फिर से वो आंखें मूंद चुका था। अरुषा को इतना सदमा लगा था कि वो बोलना भी भूलकर उसे आराम से टेक लगाकर सोते देख रही थी। आपकी मंजिल आ गई सर।
कार बंगले के गेट पर रोककर फैजान ने साथ बैठे जमाही पर जमाही लेते हशम को देखा, जिसकी आंखें नींद की वजह से बोझल हो रही थी, मगर उसके मालिक के कहने पर यह लड़का अपनी नींद कुर्बान किए कार में बैठा था। मुझे सर मत कहा करो, मैं तुम्हारा बास नहीं, वो एक और लंबी जमाही लेता बेजारी से बोला था। फैजान का सर कहना पसंद नहीं आया था। आप मेरे मालिक के बहुत खास रिश्तेदार हैं, आपका एहतराम तो बनता है। वो संजीदगी से बैक सीट से ढेरों शॉपर उठाने में उसकी मदद करता अदब से बोला, खास रिश्तेदार हूँ तो क्या, फिर भी मत कहा करो, तुम मुझसे बड़े हो, अच्छा नहीं लगता। वो सारे शॉपर उसके हाथ से लेते हुए मुस्कुराए। फैजान ने उस खूबसूरत शक्ल के साथ साथ खूबसूरत दिल वाले जवान को देखा, जो इतना सब कुछ अपने साथ बर्दाश्त करने के बावजूद हंसता मुस्कुराता रहता था। असलान के बाद वो दूसरी वाहिद हस्ती थी जिसका फैजान अब दिल से एहतराम करता था। तुम जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। अब हशम सारे शॉपर हाथों में समेट कर डोर खोलने ही लगा कि फैजान ने हाथ बढ़ाकर डोर खोल दिया। थैंक्स, शुक्रिया करते हुए वो कार से उतर गया। फिर वो गेट की तरफ आ गया जैसा कि गार्ड्स को हुक्म था। हशम अब भी गेट खोल दे, उसे देखते ही गार्ड्स ने गेट खोल दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता लान पार करके अंदर जाने वाले मेन डोर को कीस की मदद से खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दबे दबे कदमों से वो सारा शापर एक हाथ में थाम कर अपने सर को हुडी की कैप से ढाक कर दबे कदमों से बढ़ रहा था। चारों तरफ बस इतनी रोशनी थी कि वो आंखें फाड़ फाड़ कर रास्ता तय करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था कि एक जोरदार डंडे जैसी चीज सीधे आकर उसकी कमर पर लगी थी। हशम होंठ भींच कर अपना दर्द दबाता फुर्ती से मारने वाले को देखना ही चाहता था कि फिर से बड़ा सा डंडा लहराया था और इस बार वो उसके सर पर पड़ जाता। उसने जो दो कराटे वाली प्रैक्टिस का फन आजमाते हुए अपना हुनर दिखाया था, दूसरे ही पल डंडा मारने वाली हस्ती को वो उठाकर पटक देता कि दोनों वहीं अपनी अपनी जगह पर थम गए। हशम को बहुत नागवारी से टार्जन की औलाद बनकर खुद पर हमला करने वाली को कमर से थामे थामे घूर रहा था और खुद वो हशम के बाजुओं के सहारे झूली हुई उसे आंखें फाड़े देख रही थी। तुम हानिया के मुंह से बस सरगोशी में निकला था। हशम ने मुंह बनाकर उसकी कमर से अपने दोनों बाजू हटा लिए। वो लहरा कर वहीं धम से सीढ़ियों पर गिर गई। ओह माँ! हानिया की कमर में बड़ी जोर की लगी थी। कमबख्त ने कमर पर मारे जाने वाले मौत के डंडे का बदला ले लिया था। उसकी यहाँ से बेनियाज बिना अब हशम बिखरे शापर जल्दी जल्दी उठा रहा था, जो उस हानिया की वजह से हाथों से गिराने पड़े थे। हानिया भी अपनी कमर से हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। तुम यहाँ पूछना तो फर्ज बनता था। हानिया ने तेजी से सब समेट कर उठते हशम की हुडी का दामन पकड़कर हिलाया था। वॉल्यूम कम रखा करो। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? हानिया ने इस बार बस इतनी आवाज़ निकाली थी कि बस होंठ हिले थे, आवाज़ बाहर नहीं आई। वो रुषा की बेइज्जती थी, इससे कम तो नहीं हो सकती थी। हशम ने कोफे से सोचा, तुम्हारे लाला ने बुलाया है। वो ज़बरदस्ती सिलकते हुए मुस्कुराकर उसे घूरता सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ने लगा। अपने पीछे हानिया को आते महसूस करके उसने एक बार मुड़कर पीछे देखा। वो स्लीपर हाथ में लेकर धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रही थी, मगर हाय रे, उसका नाजुक सिरापा, जो हरगिज़ मोटा तो नहीं था लेकिन नाजुक भी नहीं था, जिसकी वजह से अच्छी खासी दमक हो रही थी। कुछ कहना फजूल ही था, इसलिए वो सर झटक कर बाकी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो भी परेशान परेशान उसके पीछे थी। एक बार फिर उसकी हुडी जोर से खींची गई तो हशम पूरी जारिया से पीछे मुड़ा। लाला का रूम इधर है। उसके इस कदर गुस्से से मुड़ने पर हानिया ने फुल वॉल्यूम में हुडी खींचने की वजाहत दे दी। मालूम है मुझे, अब मुंह बंद रखना वरना खींच कर लगा दूंगा। हशम ने बाकायदा हाथ उठाकर दिखा भी दिया। हानिया ने जल्दी से मस्कीन वाली शक्ल बनाकर अपने कान पकड़ लिए। हशम आंखें बंद करके सर हिलाता ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो वो भी तजस्सुस से उसके पीछे थी। मालूम है मुझे, अपनी ज़ुबान बंद रखा करो वरना खींच कर एक लगा दूंगा। हानिया हशम ने बाकायदा हाथ उठाकर दिखा भी दिया। हानिया ने जल्दी से मस्कीन वाली शक्ल बनाकर अपने कान पकड़ लिए। हशम आंखें बंद करके सर हिलाता ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो वो भी तजस्सुस के हाथों उसके पीछे थी। मोबाइल पर रिंग हुई तो असलान ने फक्त एक आंख खोलकर अभी तक कमर पर हाथ रखकर घुटती अरुषा को देखा। फिर हाथ ऊपर उठाकर भरपूर अंगड़ाई लेकर वो चेयर छोड़कर खड़ा हो गया। हाजिर है, बैठ जाए। चेयर की तरफ हाथ से इशारा करते हुए वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट अरुषा की तरफ उछाल कर डोर की तरफ बढ़ गया, जिधर हशम आ चुका था। रिंग इसी ही ने दी थी। असलान ने डोर के पास आकर नाप घुमाई। वो खुलता ही चला गया। सामने अच्छा खासा नींद में उठे हुए इंसान की तस्वीर बना हशम और पीछे मुंह खोलकर असलान को देखती इसकी अपनी बेवकूफ़ बहन भी उसे लेकर आना ज़रूर था।
असलान ने फ़ौरन मुंह बनाकर हशम से कहा, आप ही की बहन है, किसी को अपने घर में घुसते नहीं देख सकती। मेरी कमर की डंडे से सकाई करके यहाँ तक पीछा किया है। हशम बेजारी से फिर से जमाही लेता शॉपर बढ़ा चुका था कि जल्दी से पकड़े और मुझे जाने दे। पीछे कर हानिया ने डंडे मारने वाली बात बताने पर हशम की पुष्ट को घूरते हुए सोचा, दिल तो यही किया कसकर एक और डंडा भी इस मनहूस आदमी के लगा दे। अब आए हो तो आ जाओ, पार्टी हो जाए। असलान किनारे हटता उसे दावत दे चुका था वो, और फिर से जमाही रोकता शापर उठाई अंदर चलाया। तुम भी आ जाओ, तुम्हारा ही शोहर है। हानिया भाई के इतने शौक मूड पर गिरते गिरते बची। असलान उसका हाथ थाम कर खुद ही डोर बंद करता लेकर आगे बढ़ आया। तुम इतनी रात में यहाँ किस लिए आ गए? अरुषा हैरान सी हशम को देख रही थी तो सारे शापर टेरेस पर रखकर वहीं पूरा फैल कर लेट गया। अब उसमें सकत नहीं थी कि वो खड़ा रह सके। नींद से बेहाल हो रहा था और ऐसे चल लेट कर आंखें बंद कर चुका था जैसे टाइल्स वाले फर्श पर नहीं, फोम के बिस्तर पर सोया हो। हशम, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे कैसे लेट गए? हशम को ऐसे निढाल सा देखकर अरुषा ने घबरा कर उसके पास बैठकर उसका सर पकड़कर हिलाया। हशम ने बस अपना सर उठाकर उसकी गोद में रख लिया। कुछ नहीं हुआ, इसे ड्रामे कर रहा है। ज़रा सा नींद से उठवाकर दो चार चीज़ें क्या मंगवा ली। ऐसा कमज़ोर बन रहा है जैसे पहाड़ तोड़कर आ गया है। असलान को इसके फैलकर लेटने पर एतराज़ नहीं था, बल्कि उसे अपनी बीवी की गोद में सर रख कर लेटने पर था। वो गोद में सर रख दे तो मोहतरमा की जान जल जाती है, बाल नोच लिए जाते हैं। भाई ने रख लिया तो कैसे? फिर फिक्रमंदी से उसका सर प्यार से सहला सहलाकर पूछा जा रहा है, देख ले मेरी बहन, तेरे मियाँ का ये हाल है। पहले मुझे ज़बरदस्ती नींद से उठाकर यहाँ तक बुलाया, उनके कहने पर खाक छान कर सारी चीज़ें ली, और फिर कह रहे हैं कि कोई पहाड़ नहीं तोड़ा। और तो और ऊपर से इनकी बहन के हाथ से कमर पर डंडे भी खाए। हशम को भी मज़ा आया था। असलान मीर के जलाने में वो और भी फैलकर बहन की गोद में लेट गया था। लेट कर शिकवा करते हुए पलकों की झड़ी से सामने खड़े भाई बहन के तपते चेहरे को भी देख रहा था। हानू, तूने मेरे हाशू को डंडे मारे? अरुषा हशम के मामले में बहुत हसास थी। अपनी सारी दोस्ती परे करके हानिया बेचारी को घूरा, और वो बेचारी जो अभी तक ये भी समझ नहीं पाई थी कि लाला अरुषा यहाँ कैसे, हाशम क्यों आया। अब नई मुसीबत। मैंने तो चोट समझकर मारा था आशू, भला मैं हशम को मार सकती हूँ? मासूम बनकर उसने फ़ौरन सफाई दी। वो मस्कीन बनती, साथ ही हाशम को एक मोटी सी गाली देकर वहीं फर्श पर सुकून से बैठ गई। अब सारा माजरा जान कर ही खिसकेगी, इसने पक्का इरादा कर लिया था। हूँ, हानू कह तो सही रही है, वो क्यों मारेगी तुम्हें? तुम आए क्यों हाशू? आरुषा ने झट से मान कर उसका सर हिला डाला। मुझे अभी डिस्टर्ब नहीं किया जाए, जो पूछना है वो अपने शोहर से पूछो। हाशम ने हाथ खड़े कर दिए और फिर से उसकी गोद में सर रखकर बड़े आराम से असलान मीर का खून जला रहा था। असलान, आपने इतनी रात मेरे भाई को नींद से जगाकर यहाँ बुलवाया? गजब खुदा का, इतने सारे गुंडे पाल रखे हुए हैं, वो क्या सिर्फ मुझे डराने के लिए रखे हैं? इनसे ज़रा सा ज़बान हिलाकर आप डोर नहीं खुलवा सकते थे? मेरे हाशू को आपने क्यों बुलवाया? आपका धार खाया हुआ था जो इसे इतने से काम के लिए बुलवाया, वो भी सोने में जगाकर। अरुषा को तो अब सही मौका मिला था इस पर अपने इतने देर से खून चलाने वाली खोलन उतारने का, इसलिए शेरनी बनकर उसे खूब सुना डाला। असलान ने कुछ देर नाक मुंह झड़ाकर उसे देखा था, फिर उसने झुककर बड़े शौक से सब सुनती हानिया को बैठे बैठे ही उसी पोजीशन में उठा लिया था। लाला क्या कर रहे हैं? वो बुरी तरह से घबरा गई और गुड़िया की तरह उसे उठाकर इधर बैठा चुका था जिधर हशम मियाँ आराम से आंखें बंद किए पड़े हुए थे। असलान ने एक झटके से हशम का बाजू खींचकर उसका सर अपनी बीवी की गोद से उठाकर हानिया की गोद में तकरीबन पटक ही दिया। ये रही तुम्हारी बीवी और उसकी गोद, अब मेरी बीवी पर कब्जा मत जमाना। वो इत्मीनान से कहकर आरुषा के पास ही उसे एकदम लगकर आराम से बैठ गया। ऐसी हरकत करते हुए उसने इन तीनों को ही होंक बनने पर मजबूर कर दिया था। हानिया तो होश में आते ही हशम का सर झटक कर गोद से दूर फेंका था। वो सर को फर्श पर सजदा रेज होने से पहले ही बचाकर शराफत से उठकर बैठने में ही आफियत समझ चुका था। भूल गया था उसकी बहन किसी दियो की मलकियत हो चुकी है। वो एक लम्हा नहीं लगाएगा उसे उठाकर फेंकने में। वही अरुषा ने अपने से जुड़कर बैठे असलान मीर से ज़रा परे होकर बैठना चाहा कि असलान ने तेज़ी से उसकी कलाई जकड़ी थी। चुपचाप बैठी रहो वरना तुम्हारे भाई भाभी का भी लिहाज नहीं करूँगा। बोला। वो सरगोशी में था, मगर वो सरगोशी बिल्कुल नहीं थी। रूड हीरो अपनी रुखाई में इतना रोमांटिक है, अगर रोमांटिक हीरो होता तो हशम ने सोचकर झरझरी ली थी।
अब लेटो, नींद नहीं आ रही? अपने सामने पड़े सारे शापर्स असलान ने खोलते हुए हशम को और तपाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी इतना रोमांटिक नहीं हुआ हूँ। माशाल्लाह, आपकी करामत से मेरी नींद अब उड़ चुकी है। इंशाल्लाह अब खा पी कर सोऊंगा। हशम ने भी वैसे ही जवाब देकर दूसरे शॉपर्स खोलना शुरू कर दिए। शापर खुले तो अरुषा और हानिया की आंखें चमक सी गई। बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज ढेरों के हिसाब से रोस्टेड, साथ ही ढेर सारी आइसक्रीम, चिप्स के पैकेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स। वो दोनों झपट कर इनसे सारे पैकेट छीनने की तैयारी कर चुकी थी, मगर इनका इरादा जानकर हशम और असलान ने सारे शॉपर्स अपने कब्जे में कर लिए। हानिया और अरुषा ने एक दूसरे को इशारा किया और फिर इन चारों ने एक दूसरे के साथ मिलकर वो छीना झपटी मचाकर सारी चीज़ों से इंसाफ किया था कि अगर कोई नीचे सोई हुई माँ जी को पता चल जाता तो वो उनसे उनके बच्चे बनकर वो रात के वक्त इस ढाबे पर ज़रूर इन चारों को तो नहीं, इनमें से दो की तो अच्छे से खबर ले लेती। मुलाजमा बड़े आराम से अपनी सुबह की ड्यूटी देने के लिए बंगले के अंदर आ गई। सुबह आते ही वो सबसे पहले टेरेस पर जाकर वहां लगे तरह तरह पौधों के फूलों और गमलों को पानी देती थी। असरान मीर का सख्ती से आर्डर था, सबसे पहले इन गमलों को पानी देकर आए और वो अपने यही रोज़ की ड्यूटी अंजाम देने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर टेरेस पर आ गई। दरवाज़ा कैसे खुला है? अल्लाह खैर करे, मैंने तो लॉक किया था, मगर ये खुला कैसे? वो अपने सीने पर हाथ रखती खैर का कलाम पड़ती डरते डरते दरवाजे को पूरा खोलकर खुले टेरेस पर चली आई और फिर उसका मुंह जितना भी खुल सकता था वो खुल गया। वो बदहवास ही उन्हीं कदमों उल्टे कदमों से नीचे की तरफ भागी। बड़ी मालकिन इधर इधर लाउंज में बैठकर तलावते कुरान पाक करती माँ जी के वो कदमों में गिरकर बदहवासी से उनका पूरा गुंडा हिला चुकी थी। या अल्लाह, क्या है बानो? वो बड़े ही नेहमाक से तलावत कर रही थी। बुरी तरह से डर गई। बड़ी मालकिन, वहाँ टेरेस पर आप बस चलकर देख लें। वो डरी सहमी इनसे बोली तो वो कुरान पाक बंद करके टेबल पर रखकर घबराती हुई सोफे से उतरकर उसके साथ हो ली। फिर टेरेस पर आकर उनका मुंह खुल गया और मुंह पर हथेली रखे अपने चारों अजीजों को देख रही थी। बड़ी मालकिन, चेक कर ले कहीं किसी ने कुछ खिला पिला तो नहीं दिया। ये लोग ऐसे बेसुध से पड़े हैं। मुलाजमा ने उनके कान में चुपके से अपना खदशा बयान किया। ओल फोल मत बको, तुम जाओ अपना काम करो, मैं जगाती हूँ इन लोगों को। वो मुलाजमा को डांट कर अफसोस से अपने होनहार हमेशा से ऐसी बच्चों जैसी हरकतों से दूर रहने वाले बच्चे को देख रही थी। वो चारों बेखबर वहीं फर्श पर ऐसे लड़के हुए थे जैसे फूलों की सेज पर सोए हुए हों। आस पास बिखरा शापर, खाने के खाली डब्बे, आइसक्रीम के पैकेट्स, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें। लगता है रात भर यही बैठकर खाया पिया गया है। उन्होंने अपनी पागल बहू और बेटी को देखा, अपने अपने शोहरों के ऊपर लदी। वो आराम से ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही थी। माँ जी कुछ देर उनको देखती रही, फिर उनके होंठों पर ममता भरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से असलान को देखा। वो आरुषा को अपने बाजुओं में भरी सख्त फर्श पर भी बड़े सुकून से सो रहा था। पैंट और सिर्फ बनियान में उसके चेहरा पर एक अलग ही चमक छाई हुई थी। कितना सुकून था उसके चेहरे पर। असलान के पास बैठते हुए उन्होंने कुछ दूरी पर सोए हशम को भी देखा। मासूम सा वो चारों हाथ पैर फैलाकर सोया होता और हानिया उसके पेट पर सर रखे इससे लिपटी हुई थी। सबके सब पागल है। इस बार अपनी मुस्कुराहट दबाकर उन्होंने फिर से बेटे बहू पर निगाह डाली। तुमने मेरे बेटे को वो सिखा दिया जो मैं भी नहीं कर सकी, उससे ज़िंदगी का लुत्फ़ लेने का हुनर सिखा दिया। उन्होंने दिल में सोचकर असलान के सीने पर चेहरा छुपाकर सोई आरुषा को देखा। दिल कहा ऐसे ही छोड़कर चली जाए, मगर उनके आराम का सोचकर वो असलान के चेहरे पर हथेली रख चुकी थी। असलान, उन्होंने बहुत प्यार से उसके गाल को थपथपाया। असलान ने मंदी मंदी आंखें खोलकर उनका चेहरा देखा। माँ जी के संजीदा चेहरे को देखते ही उसकी पूरी आंखें खुल गई और फिर एक झटके से अरुषा को ज़ाद करते हुए उठकर बैठ गया। अरुषा उसके सीने से फिसलकर वहीं फर्श पर लड़क गई। क्या है असलान, पहले कुछ ज़बरदस्ती सुलाया था, अब धकेल दिया। उसे शायद चोट लगी थी और सोते सोते बड़बड़ाई। असलान बुरी तरह से शर्मिंदा सा हो रहा था। खाते खाते एक दूसरे से लड़ते झगड़ते जाने कब वो सब लड़क गए उन्हें पता ही नहीं चला। उसने चोर नज़र से दूसरी सीमत सोए हुए उन दोनों पर भी निगाह डाली। ये सोने की जगह है, रात भर जाकर यहाँ पार्टी करने से सुकून नहीं मिला था जो यहीं सो भी गए। इतनी ही ये जगह पसंद है तो उसे सोने लायक डेकोरेशन करवा लो, फिर आराम से सोना। माँ जी बड़े आराम से शर्मिंदा करती और मशवरे से नवाजती घुटनों पर हाथ रखकर उठ गई। असलान से कोई बात नहीं बन पड़ रही थी, जब बस उसने पास सोई अरुषा का शाना हिला डाला। क्या है, सोने दे। वो बुरी तरह से झुंझला गई। अपने शाने पर रखे असलान के हाथ को झटक दिया। नहीं, सोने दो महारानी जी को, फूलों की सेज पर सोई हुई है ना। रात भर बेटी बहू ने पार्टी की, अब आराम करने दो। बेचारी सब थकी हुई हैं। इन दोनों बेचारियों से इतना ना हो सका कि एक अपने शोहर को बेडरूम तक ले जाती और दूसरी अपने शोहर को गेस्ट रूम में आराम करने का कह देती। इनकी आवाज़ थी या सूर इसराफील। असलान तो बैठा शर्मिंदगी से अपना सर खुजा ही रहा था।
आरुषा और हानिया बदहवास होकर सीधी होकर उठ गई, बल्कि उठी ही नहीं, दुपट्टा सर पर जमाकर सर झुकाकर सारी सलावात को अच्छी बच्चियों की तरह सुनने में भी लग गई, जैसे वो मिलाद में बैठी और माँ जी दर्स दे रही हूँ। हद कर दी है तुम दोनों ने, यह तरीका होता है घर की बहू बेटियों का। ठीक है, कर ली पार्टी, मगर फिर आराम से नीचे जाते हुए सो जाती। मगर नहीं, मेरी बहू बेटी को यही आराम भी फरमाना था। वो उन दोनों के अंदाज पर नाराजगी से बोल रही थी। हशम तो ऐसा बुखलाया था कि वो एक ही छलांग से उछल कर उठा था और अपने जूते पहनने शुरू कर दिए। माँ जी सीने पर हाथ भांग कर उन चारों को देखती शर्मिंदा करने पर तुली हुई थी। मेरी क्लास है। अच्छा आशू, चलता हूँ। हशम को अपनी भलाई यहाँ से खिसकने में ही लगी। वो जूते पहनकर भागने के लिए तैयार होगा। जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, खबरदार जो बिना नाश्ते के यहाँ से गए तुम। माँ जी की एक ही डांट पर वो वहीं सर झुकाकर जमकर खड़ा हो गया। और तुम दोनों अगर होश आ गया हो तो जाकर फ्रेश होकर सीधे किचन में आओ, और खबरदार जो अपने अपने बेडरूम में जाकर तुम दोनों सोई। अब रात तक तुम दोनों को सोना नहीं है। वो इन दोनों की खबर लेती मुड़ी थी कि अरुषा ने अपना बोलना फर्ज समझा। इन्हें भी तो कुछ कह दें, ये भी शायद यहीं मौजूद है। माँ जी सारी शर्मिंदगी घोल कर पी कर अब आराम से बैठे असलान मीर की तरफ उसने उंगली से इशारा किया था। असलान ने बस उसे घूरा था। असलान, फ्रेश होकर नीचे आ जाना और सख्त फर्श पर लेटे थे, कमर में दर्द हो गया होगा, आरुषा से मसाज करवा लेना। वो बोली भी तो क्या। असलान का दिल कहा, दिल खोल कर कहका लगाए और आरुषा का मुंह खुल गया। ऐसी नाइंसाफी, बड़ा गहरा सदमा लगा था उसे। पास बैठी हानिया ने हाथ दबाकर तसल्ली बख्शी और हशम भी अपनी मुस्कुराहट दबा ली। माँ जी अपनी मुस्कुराहट छुपाती वहां से चली गई तो असलान के कहके ने आरुषा को इतना जला दिया कि वो तेजी से उठकर वहां से वॉक आउट कर गई। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज की थोड़ी सी फनी फनी एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो अगर आप लोगों ने एंजॉय किया हो तो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तमाम उम्मत मुसलमा को और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।